Friends, today we are going to know about the such a tool of education which is the helpful to develop, upgrade and modernization of education, and that is PTM, parents teacher meeting. दोस्तों, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स आर an essential elements of education structure. Parent teacher meetings are an integral component of school life. Parent teacher meetings provides teachers with an ideal opportunity to discuss discipline strategies with parents. It is important for both parents to attend all such meetings. Furthermore, parent teacher meetings give plethora way to supporting the child's learning at home by sharing recommendations for all types of educational materials or websites they may add. Parent teacher meetings play an important and vital role in the academic growth of students. Establishing rapport also enables teachers to gain insight into why certain behaviors or performances occur among the students, information that they can then use to help these children. Parents often have different goals for their children than teachers do. So it is crucial that teachers communicate expectations to parents. Why parent teacher meeting is important in today's era. Friends, today we will communicate and know about these topics, these points, the importance of PTM. Welcome to Prem Classes channel, friends. To ease the process of these meetings for parents, RPS gives its best to ensure that these meetings offer the utmost comfort to the parents and don't disturb their routine life. 8 RPS opportunities given for parents to meet all subject teachers, sport teachers, principal on a one-to-one basis also. Attending a parent-teacher meetings may be a daunting or stressful experience for some parents who are new to the school system. So in this video, we will address the importance of parent-teacher meetings as well as highlight the areas that usually benefit the most from such academic meetings. First of all, building a strong partnership between parents and teacher. Parent-teacher meetings are important for both parents and should be taken regularly in every school to build a strong and productive partnership between the teaching staff and the parents of the students. Bringing a child may also help, as parents may talk about their development and be ready to ask questions as needed. Attempt not to be negative towards either their school or teacher in front of your child, as this can create issues later. But be sure to bring a list of questions prepared. Beyond academic performance, this would help in understanding their personal lives such as hobbies, family members and religion, as well as anything that might impact them, such as musical instruments or part-time jobs that may affect them negatively. RPS is one of the best CBSE schools in the Rajasthan that focuses on healthy and productive outcomes through these types of meetings between teachers and parents. Enhancing academic progress. Many parents often think that are parent-teacher meetings necessary in school? Yeah, that is so much necessary
To emphasize the value of these meetings, several schools have started educating parents about the importance of such meetings, communicating efficiently between parents and teachers about students' academic progress can increase performance. Parents provide valuable suggestions and insight into their children because they witness them interact across numerous environments. Friends, next is gaining a holistic understanding of the child. Parent-teacher meetings can help parents gain in-depth knowledge of their child's academic performance and behavior in the class. For instance, if an unusual or disobedient behavior emerges in the course, or if their academic performance drops suddenly and unexpectedly, then parents and teachers must meet to identify its source because and before devising an action plan to address it. Then, identifying and addressing challenges early. Parents play an essential role in their child's education. Staying involved with their academic progress and early identification and resolution of challenges is crucial and critical to student learning success. Organizing a parent-teacher meetings allows both parties to investigate thoroughly into student strengths, weakness, and development. To get more insights on how to address challenges your child may face in studies, contact a teaching staff at school so teachers can ensure all their students are making good academic progress by being open and honest with parents, encouraging positive discipline and behavior. Then we will know supporting the well-being of child and strengthening home school collaboration. Then we can say that it is essential that learning stays at the center of discussion during an annual or quarterly parent-teacher meetings, although other matters such as behavioral and social concerns might also come up. Academic matters should always be the base of discussion. For parents, it is worth knowing that arriving early for the meetings is important. Other parents may have their meetings planned on the same day as yours. Friends, these were the main points and importance of the PTM or parent teacher meetings. Friends, we will know all points in Hindi also. दोस्तों, अभिभावक शिक्षक बैठक यानी पीटीएम से शिक्षा का विकास तो होता ही है और इससे छात्रों का भी विकास होता है, क्योंकि उनके अंदर जो कमियां आ रही है या जो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, उम्र में ज्यादा होते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, उनमें कुछ डेवलपमेंट होते जाते हैं, उनके बारे में पेरेंट्स को पता लगता जाता है। इसके अलावा छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन, व्यवहार और ताकत, जो उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ है, उनके बारे में पता चल जाता है। छात्रों की जो पढ़ाई के दौरान उनकी हॉबीज क्या है या उनका टैलेंट क्या है, वो भी पीटीएम के जरिए निकलकर बाहर आ जाता है। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट जैसी जो ओवरऑल एक्टिविटीज है, उनको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उससे पता लगता है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब सर्वांगीण विकास के लिए भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। उसके साथ ही पेरेंट्स और जो टीचर है उनका टीम वर्क कम्युनिकेट होता है एक दूसरे के साथ, और टीम वर्क जो होता है वो हमेशा बच्चों के विकास के लिए काम करेगा। इसके अलावा टीचर्स एंड स्टूडेंट, टीचर एंड उनके बच्चों के पेरेंट्स दोनों मिलकर बच्चे की स्टडी के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, किस दिशा में कैसे पढ़ाया जाए उसको। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल की जो पॉलिसीज है और जो फर्स्ट स्टेप है उनका समर्थन करते हैं, और जो टीचर्स है इससे उनका जो मनोबल है जो वो बढ़ता है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए इंस्पायर भी करता है। पीटीएम में
अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर रणनीतियां बनाते ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके। दोस्तों एक चीज और बता दें हम आपको, वर्तमान में पीटीएम को लेकर सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है, गंभीरता से ले रही है, और आज सभी सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम को अनिवार्य कर दिया गया है। और पीटीएम होती है पेरेंट्स को बुलाकर बाकायदा उनके बारे में, बच्चों की जो परवरिश किस ढंग से हो रही है, वो संस्कार कैसे पा रहे हैं, या स्कूलों में क्या उनकी गतिविधियां, उनके बारे में सारा अवगत करवाया जाता है ताकि बच्चों की जो परेशानियां हैं उनको फर्स्ट स्टेप पे ही सॉल्यूशन कर दिया जाए या सोल्व कर दिया जाए। दोस्तों एक नियमित कार्य है जो ये पीटीएम मीटिंग है वो, ताकि बच्चों के विकास में जो बाधाएं आ रही है या उनको समझने में जो बाधाएं आ रही है वो बैठकर उसका सॉल्यूशन किया जा सके और सुलझाई जा सके। इसके अलावा माता पिता अपने बच्चों की दिनचर्या, संघर्ष और क्षमता को किसी और की तरह नहीं समझते हैं, वो टीचर्स के माध्यम से समझ पाए, क्योंकि या तो बच्चे का समय घर पर व्यतीत होता है या स्कूल में होता है। बच्चा स्कूल में, घर पर तो ठीक है लेकिन स्कूल में सही नहीं है उसका व्यवहार, या स्कूल में तो सही है घर पर नहीं है। तो दोनों का क्या है, जब पीटीएम होती है तो उसके माध्यम से बच्चे के व्यवहार के बारे में पूरा पता चल जाता है, और बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में भी कि बच्चा कहां पे स्टैंड कर रहा है, कहां पे उसकी प्रोग्रेस हो रही है, उसके बारे में भी पूरा पता चल जाता है। स्कूल में पीटीएम बच्चे की प्रगति की समीक्षा की जाती है, बच्चों की प्रगति के बारे में बताया जाता है। अब जैसे क्वार्टरली एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, क्वार्टरली एग्जाम जो होता है उसके बारे में बच्चे के नंबर कम आते हैं तो पीटीएम के जरिए बता दिया जाता है। और ये आरपीएस जो है राज पब्लिक स्कूल में, इसके माध्यम से बहुत ही ज्यादा इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। दोस्तों जीएसपी भी अपनाई जा रही है, गुरु शिष्य परंपरा। बच्चों के साथ बैठकर उनको खाना खिलाना, उनकी बातों को जानना, उनके विचारों को जानना, घर पर क्या दिक्कत आ रही है उसको समझना, ये इस स्कूल से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। और सभी को, मैं तो कह रहा हूं सभी को इस विषय में सोचना चाहिए कि पीटीएम और जीएसपी दोनों शिक्षा के उन्नीकरण, मतलब कि विकास में और नवीनीकरण में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और जो बच्चे उच्छृंखल हो रहे हैं या समय के साथ बहुत ज्यादा एडवांस हो रहे हैं या वो गैजेट्स के साथ बहुत ज्यादा टूदा हो रहे हैं, तो उनको उनसे दूर करने में पीटीएम बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, ताकि पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर अपने बच्चे के भविष्य को संवार सके। इसलिए पीटीएम का होना बहुत जरूरी है। इसके फायदे ही नजर आते हैं, नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि जब टीचर्स और पेरेंट्स जो कि मेन भूमिका में है बच्चे के भविष्य के निर्माण में, जब वो दोनों एक जगह बैठकर उसके लिए कुछ सोचेंगे तो सही सोचेंगे, मंथन करेंगे तो सही मंथन करेंगे अपने बच्चे के विकास के लिए। तो दोस्तों ये था पीटीएम के बारे में। पीटीएम क्या होता है, पीटीएम क्यों जरूरी है, पीटीएम का बच्चों के भविष्य में क्या योगदान है, या पीटीएम का एजुकेशन के क्या योगदान है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी हम एक बात और जानते हैं कि पीटीएम जो है बच्चों के भविष्य के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे अच्छे और बुरे का उसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह एक गीली मिट्टी का लोधा होता है, तो उसे कोई भी शेप दी जा सकती है। तो बच्चे का निर्माण किस दिशा में हो रहा है यह पीटीएम के जरिए पता लग सकता है, और पीटीएम के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि बच्चे में क्या कमियां हैं, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। देखिए दोस्तों, बच्चे में स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेस भी होती है। इनका पता लगाकर बच्चे को सही दिशा की ओर ले जाना पेरेंट्स और टीचर दोनों का सम्मिलित दायित्व होता है। केवल टीचर्स है वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, न केवल पेरेंट्स है। दोस्तों पेरेंट्स को भी चाहिए कि पीटीएम तक ही वो इतिश्री ना मान ले। जब उन्हें पता लग जाता है कि बच्चे के बारे में ये वीकनेस और स्ट्रेंथ है तो उस पर ध्यान दे, केवल इसे पीटीएम तक ही सीमित ना रखे। पीटीएम का महत्व तभी होगा जब दोनों मिलकर एक साथ कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेशन का जो फायदा है तभी मिलेगा जब उस पर पॉजिटिवली काम हो। तो दोस्तों ये था पीटीएम के बारे में एक गोल्डन इंफॉर्मेशन का मंच। दोस्तों आप सभी ने जाना कि पीटीएम होता क्या है, जीएसपी क्या होता है, लेकिन दोस्तों जरूरत तो यह है कि आप पीटीएम के बारे में जाने परम क्लास सीरीज के माध्यम से। दोस्तों बहुत कम आपको सोशल मीडिया पर मिलेगा कि पीटीएम होता क्या है, लेकिन दोस्तों आपने जान लिया। आपको करना क्या है,
पीटीएम के बारे में जानकर प्रमुख क्लासेस के माध्यम से। और आपको करना क्या होगा, आपको करना यह है कि प्रमुख क्लासेस के बारे में लोगों को बताएं कि पीटीएम ये होता है, पीटीएम के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करें, ताकि हम शिक्षा के विकास में और शिक्षा के ग्लोबलाइजेशन में अपना योगदान पूरा दे सकें। तभी दोस्तों सार्थक है ये पीटीएम की जो पूरी रचना है, व्यू रचना या पृष्ठभूमि या उसका मंच, तभी सार्थक हो सकता है। दोस्तों इसी आशा के साथ कि आप इस वीडियो को जानकर लोगों तक पीटीएम की महत्ता को पहुंचाएंगे। दोस्तों कल मिलते हैं एक इसी समय एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।